इस वीडियो में ज़ीनर डायोड के बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। देखो, नॉर्मल हमारा जो डायोड होता है सर्किट में सिंबल ये है उसका, ठीक है। और ज़ीनर डायोड का यहाँ पर एक ऐसा Z सिंबल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो P ये है, नुकीला पोर्शन ये है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, N पर नुकीला, तो N साइड ये है। तो ये तुम्हारा, अगर मैं इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और इस नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो गया, करंट तुम्हारा फ्लो करेगा। तो इस वाले केस में भी करंट फ्लो करेगा तुम्हारा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में ज़ीनर डायोड में भी करंट फ्लो करता है, लेकिन जब हम उसको पोलैरिटी को चेंज करते हैं, अच्छा पॉजिटिव इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने के लिए हमें वोल्टेज ड्रॉप कितना चाहिए सिलिकॉन के लिए, 0.7 वोल्ट्स, जर्मेनियम के लिए 1.12 वोल्ट्स आई थिंक, या 1.12 वोल्ट्स पर जर्मेनियम, ये सिलिकॉन के लिए, ये जर्मेनियम के लिए, ठीक है। इतना वोल्टेज ड्रॉप अगर तुम देखोगे तो ये करंट जो है तुम्हारा फ्लो करेगा फॉरवर्ड बायस में। लेकिन जब रिवर्स बायसिंग होगा, जब तुम उसको नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, तो ये रिवर्स बायसिंग का केस होगा। तो ज़ीनर डायोड्स क्या होते हैं कि यहाँ पर जब रिवर्स बायस में एक नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल पीएन डायोड है, ये ज़ीनर है, ज़ीनर डायोड, ठीक है। तो नॉर्मल पीएन डायोड में क्या होता है, यहाँ पे हीट के वजह से ये बर्न्स आउट, बट हियर इट इज एबल टू सस्टेन। तो अगर मुझे नॉर्मल फॉरवर्ड बायसिंग के लिए अगर यूज करना है तो मैं नॉर्मल पीएन डायोड को यूज कर सकता हूँ, लेकिन जहां पे मुझे रिवर्स बायसिंग चाहिए तो वहां पर आई विल बी यूजिंग अ ज़ीनर डायोड। ये करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ जो हम लोग बना रहे थे, दिस इज योर करंट and this is your voltage axis. For Zener diode, the graph was like this. You said that this is my Zener voltage or breakdown voltage of a Zener. If you see here, once this Zener voltage is attained, till then no current is there. After that, slight increase in the voltage value and the current is shooting up. You see here, if you slightly increasing this voltage value, the current value is enormously increasing. So slight increase after breakdown voltage or Zener voltage, large current. In the previous video, I have explained that in a normal diode, there is this collisions happening, whereas in Zener diode, the depletion layer width is very, very less. So because of very strong electric field, the electrons are pulled out. If you can again watch that video. So after this slight increase, after this breakdown voltage, you will observe large current. Okay. Can I come in the reverse way? So even if large current is supplied, there is not much change in the voltage. It means that, suppose if I take a Zener diode, a Zener diode is designed. Okay. Now its breakdown voltage is, let us say, 3 volt. Its breakdown voltage is 3 volt. So still you are giving large amount of current, there won't be much change in the
Zener voltage. Okay, it will be able to take large amount of current. That is the special property of Zener diode. So this property we can use in circuits. We can solve some simple circuits. So this point you should remember that after Zener voltage is attained, slight increase in voltage also giving large amount of current. Okay. Let us see some simple examples. Okay, this is my minus, this is my plus, this is my minus, this is my plus, because your N is this side and your P is this side. Is it connected in reverse bias? It is plus connected to the minus. Let us say this is 1 kilo ohms, and the breakdown voltage of this particular Zener diode, let us say, is 12 volts. Now, case 1, I give only 5 volts. यहाँ पे मैं 5 वोल्ट का बैटरी लगाता हूँ. क्या इसमें से करंट फ्लो होगा? Will any current flow through the circuit? The answer is current won't flow. Current won't flow through the circuit, क्योंकि इसका breakdown voltage है 12 और तुमने लगाया 5 volts. ठीक है, तो 5 volts 12 volts से कम है. फिगर को याद करो. ठीक है, तो ये 12 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज. देखो पहले फॉरवर्ड बायस में था, जैसे तुमने इसको रिवर्स बायस किया तो वो 0 हो गया. तो रिवर्स बायस करने के बाद तुमको लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज देना पड़ेगा फिर से करंट को दौड़ाने के लिए. ठीक है, तो कितना वोल्टेज देना पड़ेगा? रिवर्स में, फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, रिवर्स की. तो रिवर्स में मुझे इतना वोल्टेज तो देना ही पड़ेगा. यहाँ हम लोग कितना दे रहे हैं? 5 वोल्ट्स. सो it won't be sufficient for the current to flow in this direction. Okay, I am saying that this is my P and this is my N, and you have connected in reverse. So this is my negative terminal, this is my positive terminal. Okay, positive, negative, positive, negative. All right, the positive and negative, like that you have to check. So यहाँ पर तुम देखोगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा. व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप? इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? V इज इक्वल टू IR होगा. लेकिन I इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से यहां तक वोल्टेज मेरा ड्रॉप 0 है. अगर यहां से यहां तक मेरा वोल्टेज ड्रॉप 0 है, ये 5 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, तो इसको 5 वोल्ट होना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इसको और इसको जोड़ने से इतना आना चाहिए. ठीक है, तो अगर मैं 5 वोल्ट लगाता हूं तो अक्रॉस Zener डायोड कितना वोल्टेज ड्रॉप है? 5 वोल्ट है. लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम वहां से नॉकआउट कर दें. चलो केस 2, मान लो यहां पर मैं 15 वोल्ट का बैटरी लगाता हूं, तब क्या होगा? कितना करंट फ्लो करेगा? सबसे पहली बात, क्या करंट फ्लो करेगा? तो यहां देखो तुम, मुझे रिवर्स में 12 वोल्ट चाहिए. यहाँ पे मैंने 15 वोल्ट लगाया, तो मेरा करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा. तो देयर विल बी सम करंट ओवर हियर. ओके, तो वो करंट निकालने के लिए मैं कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो हमने वो ग्राफ देखा था कि अगर मैं 12 वोल्ट से भी ज्यादा वोल्टेज अगर मैं दूंगा तो अक्रॉस Zener डायोड मेरा वोल्टेज ड्रॉप कुछ ज्यादा होगा नहीं. 12.1 होगा, 12.2 होगा, 11.9 होगा, स्लाइट फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन करंट को, ह्यूज अमाउंट को वो अलाउ करेगा. तो यहां पर इन दोनों पॉइंट के बीच में अक्रॉस योर Zener डायोड इट विल बी 12 वोल्ट्स. ठीक है, इट विल बी 12 वोल्ट्स. अगर ये 12 वोल्ट है
तो इन दोनों पॉइंट के बीच में मेरा 3 वोल्ट होगा। क्यों 3 वोल्ट होगा? क्योंकि मेरा टोटल 15 वोल्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे V पता है, यहाँ पे मुझे R पता है। क्या मैं I को निकाल सकता हूँ? V इज इक्वल टू 3 वोल्ट, I मल्टीप्लाइड बाई 1000 किलो है वो, 1000 ohms। So I will be equal to 3 divided by 1000, 0.003 amps और 3 मिली एम्प्स। तो इस केस में 3 मिली एम्प्स करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बड़ा वाला बैटरी लगा देता हूँ, सोर्स लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 100 वोल्ट का। तब क्या होता है? तब भी तुम देखोगे कि 12 वोल्ट ही होगा इन दोनों के बीच का ड्रॉप। और यहाँ पर मेरा करंट कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर मेरा सेकंड केस में करंट हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। और देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 12 है, तो ये कितना हो जाएगा सेकंड केस में? दिस विल बी 87, राइट? सेकंड केस में तो 87 हो जाएगा। तो I मल्टीप्लाइड बाई 1000 and what is your V now? It is 87 now. 87 is equal to 1000 I. I is equal to 87 मिली एम्प। इन दोनों में देखो तुम, ये 29 टाइम्स ज्यादा है, ये 29 टाइम्स ज्यादा करंट है ये, लेकिन ज़ीनर डायोड ने उसको अलाउ कर दिया। तो वो ग्राफ में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि स्लाइड चेंज इन द, हाँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, ये 12 वोल्ट एग्जैक्टली नहीं होगा, थोड़ा सा कम ज्यादा होगा। तुमको ग्राफ याद है ना? ग्राफ ऐसे था वो। तो यहाँ पे स्लाइटली अगर इंक्रीज कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा करंट दिखा रहा है। स्लाइट इंक्रीज एंड यू सी हाउ मच करंट इज रेजिंग, है ना? तो ये एग्जांपल उसको प्रूव करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यू शुड रिमेंबर। चलो एक और देखते हैं कि अच्छा, मैं सिंबल लगाना भूल गया था फिर पीछे वाले एग्जांपल में। आपको ये 2 डंडे ऐसे लगाने पड़ेंगे। अगर आप वो 2 डंडे लगाओगे तभी उसका मतलब है कि वो ज़ीनर डायोड है, वरना नहीं, वो नॉर्मल डायोड है। ठीक है, आपको फिगर में देखना पड़ेगा कि ये 2 डंडे लगे हुए कितने लगे। ये 1 किलो ओम से मान लो, ये 50 वोल्ट से। ठीक है, ये कितना हमने कितना लिया था? 100 वोल्ट से लिया था। ठीक है, 100 वोल्ट। ये मेरा प्लस माइनस है। ये देखोगे ये भी इसका, ये माइनस इधर है, प्लस इधर है, माइनस इधर है, प्लस। ये दोनों किस में लगे हुए हैं? ये दोनों इसके साथ रिवर्स बायसिंग में लगे हुए हैं। तो ज़ीनर डायोड हमारा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, इसको अगर मैं बोलता हूँ D1, इसको मैं बोलता हूँ D2, और मान के चलो कि इसका ब्रेक डाउन कभी भी ज़ीनर डायोड अगर है तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि ज़ीनर डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना था। मान लो वो दिया हुआ है 12 वोल्ट्स। ठीक है, अगर अभी मैं पूछूं कि इसमें करंट कितना जा रहा है, कैसे निकालोगे? देखो ये भी रिवर्स में है, ये भी रिवर्स में है, तो इसको क्रॉस करने के लिए 12 वोल्ट चाहिए, इसको क्रॉस करने के लिए भी 12 वोल्ट चाहिए। मतलब यहां से अगर मैं यहां तक देखूं तो मुझे 24 वोल्ट चाहिए, राइट? तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मेरा 24 वोल्ट है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मेरा कितना होगा? 100 माइनस 24, 76 वोल्ट होगा। ओके, तो मेरा करंट क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V कितना है? 76 डिवाइडेड बाय 1000 एम्पियर्स। ठीक है, तो ये हो गया एक केस। अभी मान लो कि मैं इसको उल्टा कर देता हूं, तो मैं
उल्टा करता हूं, न्यूक्लियर वाले भाई साहब को इधर लगाता हूं और इसको ऐसे करता हूं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस है, तो ये मेरा प्लस माइनस हो गया। ये तो इसके साथ रिवर्स में कनेक्टेड है, लेकिन ये कैसे कनेक्टेड है, ये प्लस और प्लस ये फॉरवर्ड बायस में। तो इसको क्रॉस करने के लिए इसको 12 वोल्ट्स चाहिए, लेकिन यहां से इसको क्रॉस करने के लिए चूंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, इसको 0.6 वोल्ट्स चाहिए, ठीक है। तो यहां से यहां तक आने के लिए इसको 12.6 वोल्ट्स चाहिए, ठीक है। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स बोलते हैं, कॉम्बिनेशन डायोड्स, हमने मल्टीपल डायोड्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो सॉल्व आपको इस तरह करना है। तो ये यहां से यहां तक 12.6 वोल्ट्स है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखो, जहां पर रेजिस्टर आएगा वही तुम्हारा ड्रॉप होगा, अगर रेजिस्टर नहीं होगा तो ड्रॉप भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर एक और पॉइंट ये है कि ये वायर में भी तुम्हारा रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। आपको ये ना बोलते हैं कि सर ये वायर में भी तो रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, और रो एल बाई जो सब सीखा था उसको हम लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टर की। ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टर हमने इसमें लगाया है, क्यों लगाया है, ताकि मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिल सके। तो यहां से यहां तक 12.6 है, तो इन दोनों के बीच में 100 माइनस 12.6 होगा। इस केस में कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, इन दोनों के पॉइंट के बीच में 100 माइनस 12.6 होगा। सो ये होगा 88, 87.4, राइट। सो यहाँ पे तुम्हारा करंट कितना हो जाएगा, I is equal to V by R, वोल्टेज कितना है 87.4 divided by 1000. So this is how you should solve the questions, okay.